ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको स्क्रीन विजिबल है। चैट बॉक्स में आप मुझे एक यस का रिप्लाई करेंगे। That screen is visible to you. At the very first, let me introduce myself. I'm Kuratulan and I'll be your instructor for this course. I have MPhil degree in applied linguistics and I have a bachelor's degree in English language and literature. Besides this, I'm working as a spoken English instructor since 3 years. By profession, an entrepreneur and a businesswoman. Okay, students. So very quickly, we will start our lecture today. Firstly, हम focus करेंगे on our aims and objective of our course. Why communication is important for a freelancer, not only for a freelancer, but why communication is important for an individual. So, बेटा communication is a type of etiquette. एक ऐसा etiquette है which is two-way. If you are communicating with someone, if you are speaking alone but no one is responding, we are not supposed to call that communication. अगर आप अकेले बात कर रहे हैं तो हम उसे communication नहीं कहेंगे until and unless that thing will be two way, कि आप बात कर रहे हैं और कोई person आपको answer कर रहा है, ठीक है? So what we say usually in freelancing success, communication role is almost 70%. If you are a good communicator, तो आपकी success के chances कितने हैं? That is 70%, and your skill role is almost 30%. Okay, so if you are very good in communication, this will not only enhance your freelancing skills, but this also improve your personality as an individual. हम देखते हैं जो लोग खूबसूरत बोलते हैं, लोग चाहते हैं कि वो उन्हें सुने. If we talk about religious context, हम देखते हैं कि all the prophets are good communicators. अल्लाह के जो सारे नबी थे वो अच्छे communicator थे. They are very good in communication skills. So communication skills are far more important. इसका impact क्या आता है आपकी life पर? If you are student, आपको presentation में extra score मिलेगा, and you can easily ask your instructor about anything. After that, if you are a freelancer or you are a business person, you can make effective collaboration with your clients as well as long-term relationship. For example, let me give an example. I'm working with a publication house which is from UK, and they hired me for one book. That was the task of proofreading, and till now it has been 3 years and we are working together. What is the reason behind? As that person is comfortable with me, कि वो उन्हें पता है कि this person will understand our needs and this person will communicate perfectly to others as well. They made me team head. So if you are very good in communication, this is how communication affects your freelancing skills as well. अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि कम्युनिकेशन किस तरह से जरूरी है, या कम्युनिकेशन अच्छी होने का पर्पस क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों होनी चाहिए. अब हम देखते हैं कि भाई क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना दें. हम इन्हें कहते हैं कि दे आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. 7 C ऐसे हैं जो कि मिलकर एक अच्छी कम्युनिकेशन बनाते हैं. हम उनका ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है? द वेरी फर्स्ट वन इज कंप्लीटनेस. बच्चों, आपने अपनी अटेंडेंस यहाँ नहीं लगवानी. जो आपके ग्रुप एडमिन है, आप काइंडली उन्हें मैसेज करें. ये जिस बंदे ने आपको लिंक दिया है मेरा बेटा, उसे मैसेज करो कि यू आर प्रेजेंट इन योर लेक्चर. आपने जूम पे मुझे अटेंडेंस नहीं देनी. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कंप्लीटनेस. व्हाट यू आर सेइंग टू अदर पर्सन, आप दूसरे बंदे को जो बात बता रहे हैं, इट शुड बी कंप्लीट. अगले बंदे को पूरी समझ आए, ठीक है? देन इट शुड बी कंसाइज. बहुत लंबी लंबी कहानियां ना हो. कंसाइजली, शॉर्टली, ब्रीफली अगले बंदे को आप बात समझा दें. इट शुड बी क्लियर. क्लैरिटी हो आपकी बात में. whatever you are conveying, it should be clear and understandable. अगले बंदे को समझ आए. then it should be concrete. हम कहते हैं
till date concrete एक ऐसा material है which is far more strong than anything. Even कहा जाता है कि in situation of atomic attack concrete can survive. बाकी सब कुछ मलियामेट हो जाएगा, लेकिन ऐसी बिल्डिंग्स रहेंगी जो कि कंक्रीट हैं. सो और लैंग्वेज शुड बी कंक्रीट, कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेटेड हो, सारी चीजें मिलके एक अच्छी और सॉलिड लैंग्वेज बनाते हैं. एंड व्हाट सॉलिड लैंग्वेज मेड, solid language or good communication skill made you good communicator, जो कि आपकी key to success है. After that correctness, हम अपने कोर्स में फोकस करेंगे how we can use words correctly in different situations. हमने पढ़ना है formal ways of spoken English, जिसमें हम different situations में correct word use करने पर फोकस करेंगे. Alexaries पढ़ेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि आपने किस सिचुएशन में क्या यूज करना है. हम टेंसेस पढ़ेंगे जो कि आपको लैंग्वेज परफेक्ट करने में, करेक्ट करने में मदद देंगे. देन खटियसनेस, खटियसनेस क्या होती है, यो कि आप अगले बंदे के लेवल को अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक बात कर रहे हो. दिस इज योर फर्स्ट डे ऑफ कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चर. इफ मैं यहाँ आपसे 100% इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूं, मैं यहाँ कहूँ कि मैंने एक ब्रिटिश एक्सेंट यूज करना है आप लोगों के साथ, आई हैव टू बी वेरी लाइक देम, तो आपको कोई बात समझ नहीं आएगी. सो हम कोड स्विचिंग यूज कर रहे हैं, हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच कर रहे हैं. वी आर यूजिंग इंग्लिश एंड उर्दू टुगेदर. क्या उसका मकसद है, ताकि आपको वो चीजें समझ आ जाएं. ठीक है, सो इसे कहते हैं कर्टियसनेस. आफ्टर दैट कंसीडरेशन. कंसीडरेशन क्या होती है बेटा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं आपको उसके इमोशंस का भी ख्याल हो. यू हैव टू कंसीडर his or her position, at which position you are. If I'm your teacher, I'll be rude with you, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा. ऑब्वियसली यू विल नॉट सेटिस्फाई एंड आई विल हर्ट योर इमोशंस एज वेल, और आपको दुख होगा. सो आई हैव टू कंसीडर what in which situation you are. या आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है. या एक हमारा दोस्त हमारे पास रोता हुआ आता है, how we have to behave. This is consideration. अब हम स्विच कर जाते हैं अपनी कोर्स आउटलाइन पे. हमारी कोर्स आउटलाइन होगी बिगिनिंग से एडवांस तक, ठीक है, जिसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे. ये आ गई हमारी कोर्स आउटलाइन. The very first lecture which is we are taking today is introduction to the course. इसमें हमने aims and objectives पढ़ लिए, इसमें हमने 7 C's of communication पढ़ लिए. अब फिर हम पढ़ेंगे self introduction का first part. And what is the focus of our second lecture? That is pronunciation. Pronunciation क्या है, how to sound correctly. If you are speaking some language, how to sound correctly according to that language. So that is pronunciation. अब हम पढ़ेंगे why is it compulsory to learn sounds of words, के इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनके साउंड्स लर्न करना क्यों जरूरी है. फिर हम पढ़ेंगे tongue twisters. tongue twisters क्या है, tongue twisters are certain sentences जिसमें alliteration यूज होती है, repetition यूज होती है. जब आप कोई अगर आप में से कोई म्यूजिक क्लासेस लेता हो तो वो आपको बार बार सुर दोहराने का कहते हैं, या आप नात पढ़ते हैं तो बार बार आपको कहते हैं प्रैक्टिस करें, या आप कोई स्पीच करना चाहते हैं, डिबेटर हैं, तो बार बार आपको कहा जाता है प्रैक्टिस करो. तो टंग ट्विस्टर्स भी एक प्रैक्टिस हैं to improve your English fluency as well as pronunciation. After that we will focus on formal ways of spoken English, कि एक अच्छे वे में, करेक्ट वे में इंग्लिश किस जगह पे किस तरह यूज करनी है. इन सेकेंड लेक्चर वी विल स्टडी हाउ वी कैन से थैंक यू टू डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट एक ऐसी चीज को कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट कहते हैं आपकी सिचुएशन को, जिस सिचुएशन में आप उस वक्त मौजूद हों. आपका क्लासरूम है, या वो आपका घर है, या वो आप अपने दोस्तों के साथ हैं. देन हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 कवर करेंगे, और हमें प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस आपको मैं दूंगी जिसमें डिफरेंट साउंड्स ऑफ वर्ड्स होंगे, और आप को उनकी एज एन एक्टिविटी मुझे सबमिट कराना होगा इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. आफ्टर दैट इन लेक्चर 3 वी विल टॉक अबाउट parts of speech, which is also another important part of spoken English. Then हम next set of tongue twisters को पढ़ेंगे. After that we will study how to say welcome.
in two ways. The one is in form of gratitude कि अगर आपको किसी ने thank you कहा है तो आप किस तरह से उसे आगे से welcome कहेंगे, and the other thing is कि आपने as a hospitality gesture उसे कैसे use करना है. If someone is coming to your house, if someone is coming to your institute, you are host. If someone is coming to your event, तो आपने उसे कैसे welcome कहना है. But there is no assignment for today. Okay, then we will again study pronunciation exercise, and after that you will practice. फिर next lecture में, in lecture 4, we will study all part of speech in depth. In depth का मतलब है कि we will study how we can use these part of speech in spoken English. So इस lecture में हम पढ़ेंगे noun, pronoun और verb को. Then next of tongue twisters, and then we will study how we can accept something in formal manners or simple ways to say yes. Then your pronunciation practice. Then our focus of our next lecture is also English grammar in use, as so many parts are related to correct use of English. इसमें हम पढ़ेंगे adjective, adverbs, prepositions and their use in spoken English. और हम start कर लेंगे अपने tenses को. और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे how to reject something in formal manners or simple ways to say no. और उसके बाद हम sounds की प्रैक्टिस करेंगे अपनी. उसके बाद हमारा जो लेक्चर 6 होगा उसका फोकस क्या होगा. our focus will be on English grammar in use and also on freelancing. कि आप सिर्फ ये ना समझें कि स्पोकन इंग्लिश एक ऐसी स्किल है जिससे आप अर्न नहीं कर सकते. ठीक है. So you can earn very good by using spoken English. थोड़ी देर पहले before starting your lecture, I got a call that lady was saying that, madam, can you please write few words for our hosting? क्या आप हमें थोड़ी सी hosting के लिए words लिखते हैं, कुछ lines लिखते हैं जो हम अपनी hosting में use कर सकें, and she is gonna pay me a good amount as well. Okay. So parts of speech में हम देखेंगे conjunction को देखेंगे, interjections को देखेंगे and their use in spoken English, and then we will talk about prefix and suffix. Oh, and then in formal ways of spoken English we will talk about how to ask for permission. और हम देखेंगे how you can make a good career as a good communicator. अच्छे communicator बन जाएंगे. कौन कौन से careers ऐसे हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं. We will make Fiverr profile. आप में से किसी एक बंदे कि मैं Fiverr प्रोफाइल बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, and we will check gigs. हम gigs का एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से gigs हम बना सकते हैं और हम उनसे कैसे अर्निंग कर सकते हैं. And we will switch to the next level of pronunciation practice, that is dialogues. Then in next lecture we will study tenses and freelancing, past tense, present tense and formal ways of spoken English में हम पढ़ेंगे conversation starters के किसी से हमने बात करनी है तो हमने कैसे शुरू करनी है. और freelancing platform में हम LinkedIn की प्रोफाइल बनाएंगे. और फिर pronunciation practice हम करेंगे via different dialogues. After that फिर फ्रीलांसिंग पे और टेंसेस पे हमारा फोकस होगा, जिसमें हम फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे. फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम पढ़ेंगे कन्वर्सेशन एंडर्स क्या हैं, या कन्वर्सेशन को पॉजिटिव नोट पर किस तरह एंड किया जाता है. एक्सिलरीज क्या है आपकी इंग्लिश में और उनका यूज क्या है. फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम देखेंगे Amazon ऑडियो बुक्स आप कैसे कर सकते हो, और यूजिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स हाउ यू कैन मेक अ यूट्यूब चैनल एंड अर्न. और फिर हमारी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी. लेक्चर 9 का फोकस हमारे का होगा वोकैबुलरी बिल्डिंग पे एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे. सेंटेंसेस कि डिफरेंट टाइप्स को हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम वोकैबुलरी बिल्डिंग पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि कौन से इंग्लिश में कॉमन वर्ड्स हैं जो यूज होते हैं एंड इन विच कॉन्टेक्स्ट वी कैन यूज दैट. फिर हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड न्यू वर्ड्स. कि कोई ऐसा जुमला जिसमें आपको लफ्ज समझ नहीं आ रहे, कुछ लफ्ज ऐसे हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नए हैं लेकिन हमें बाकी सेंटेंस की समझ आ रही है. हाउ वी कैन अंडरस्टैंड और हाउ वी कैन pick up meaning of that word using our context. और उसके बाद formal ways of spoken English में हम पढ़ेंगे कि sadness या grief अगर आपने express करना है तो how you can express that in English language. Then pronunciation practice. Lecture 10 is far more important
in this lecture we will study relationship of speaking with two things, which is listening and reading. हम active listening skills पे बात करेंगे. मैंने आपको पहले कहा communication is a two-way thing. एक अकेली should be two-way traffic. So हम पढ़ेंगे कि how we can respond someone effectively in our communication. और फिर हम एक ग्रुप डिस्कशन की एक्टिविटी करेंगे WhatsApp ग्रुप में, जिसमें आप लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल की प्रैक्टिस करेंगे. और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रीडिंग और स्पीकिंग में क्या रिलेशनशिप है, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग कम्प्रीहेंशन. ऑब्वियसली जब तक अगर आप किसी से वाया ईमेल या वाया चैट बात कर रहे हैं, आपको उसका मतलब ही समझ नहीं है पर्सन कह रहा है, so you are unable to answer that. And we will practice reading aloud with proper annotation and pronunciation. ओके फिर हम फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस को पढ़ेंगे. इंग्लिश में कौन सी फेमस वर्ड्स हैं, कौन सी फेमस फ्रेजेस हैं. और आफ्टर दैट वी विल स्टडी इडियम्स एंड स्लैंग्स. स्लैंग्स क्या होती हैं? जो हमारी गली कुचों की जुबान है ना, इसे हम कहते हैं स्लैंग. जिस तरह अब हम इंट्रोडक्शन में भी कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि स्लैंग के होंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन में जब हम ग्रीटिंग्स को देखेंगे तो हम कुछ स्लैंग वर्ड्स भी देखेंगे. स्लैंग इज गली कुचों की जुबान जो हम आपस में बोलते हैं या हमारे नॉर्मली आम वे में बोली जाती है, लेकिन दैट लैंग्वेज इज नॉट रिलेटेड टू आवर ऑफिस और आवर एकेडमिक सेटिंग्स. अच्छा जी, हमारा लेक्चर 11 जो है it is about explaining a topic, how we can explain some topic perfectly. या अगर आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया जाता है, हाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट कॉम्प्लेक्स टॉपिक इन सिंपल टर्म्स, हाउ यू कैन यूज विजुअल एड्स एंड एग्जांपल्स टू इलैबोरेट समथिंग. अगर आप किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे हैं तो आप किस तरह चीजों को इलैबोरेट कर सकते हैं. देन आपको मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दूंगी कि आपको सबको एक टॉपिक असाइन होगा. आपकी मैडम जब मुझे लिस्ट शेयर कर देंगी आपके नेम्स की, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपको पोस्ट कर दूंगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि हर बंदे का एक टॉपिक होगा और वो उस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करके एक वीडियो बना के हमें सेंड करेगा कि वो उस टॉपिक को किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है. इट कैन बी रिलेटेड टू योर लाइफ एंड इट कैन बी समथिंग एल्स. जब हम वो स्टडी करेंगे हम उसे डीपली डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ वी कैन शो आ एक्साइटमेंट, कि अगर हम किसी चीज के बारे में एक्साइटेड हैं तो हम किस तरह से उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ एक चीज मैं ऐड करूं, हर चीज को एक्सप्रेस करने की हम बेस क्यों पढ़ रहे हैं. देखो एक सिचुएशन होती है, अगर आप मुझे सर ने कहा कि मैडम आप स्टार्ट कर दें लेक्चर, मैं सर को कहूँ थैंक यू सर. उसके बाद मैम हमारा मुझे कहें कि मैडम मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, मैडम को मैं कहूँ थैंक यू. उसके बाद आप में से कोई बंदा मुझे ये कहे कि हमारा लेक्चर बहुत अच्छा है या मैडम वेलकम टू द क्लास, तो मैं आपको कहूँ थैंक यू. तो आप क्या कहेंगे कि इस बंदे की वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी सी है, तो क्या ये बंदी हमें अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ा सकेगी, या दिस पर्सन इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर एज वेल. सो हमें डिफरेंट सिचुएशंस में अच्छे तरीके से डिफरेंट वेज में रिएक्ट करना आता हो. आप एकेडमिक राइटिंग करते हो या आप किसी तरह बात करते हो तो कहा जाता है गुड कम्युनिकेटर और अ गुड राइटर. कंटेंट राइटर्स अगर आप में से कोई हैं तो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि एक पैराग्राफ में एक वर्ड दोबारा रिपीट नहीं किया जाता. सेम गोस फॉर स्पोकन इंग्लिश, कि अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एक ही लफ्ज को बार बार रिपीट नहीं करते. ओके देन वी विल प्रैक्टिस क्यू कार्ड टॉपिक. क्यू कार्ड टॉपिक क्या है? ये आर्ट्स की स्पीकिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आप एग्जामिनर आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस करता है अबाउट योर हॉबीज, अबाउट योर लाइफ और अबाउट योर एजुकेशन और व्हाटएवर ही और शी वांट्स टू. तो हम क्यू कार्ड टॉपिक की भी प्रैक्टिस करेंगे. और आवर लास्ट लेक्चर विल बी अबाउट इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स. आप फ्रीलांसर हैं, आप कोई स्टूडेंट हैं, आपको बहुत जगहों पे इंटरव्यू देने पड़ते हैं, या आप कोई पब्लिक फिगर हैं तो आपको कहीं जाके इंटरव्यू देना पड़ता है. उसमें हम करेंगे प्रिपरेशन करेंगे फॉर जॉब इंटरव्यूज, एंड देन वी विल टॉक अबाउट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर देम. ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट आवर बॉडी लैंग्वेज, कि आपने इंटरव्यू में जाना है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए और ये सारी चीजें, एंड हाउ you can use your communication skills in an interview.
और उसके बाद हम फाइनल प्रेजेंटेशन में आपको साइन करूंगी और सर्टेन एक डेट दूंगी जिस तक आप अपनी फाइनल प्रेजेंटेशन सबमिट कराएंगे। या हो सकता है कि हम सर इमरान से रिक्वेस्ट करें कि सर हम बच्चों के लाइव इंटरव्यू लेंगे इन्हें अनम्यूट करके। तो कुछ भी हो सकता है आपके फाइनल प्रोजेक्ट में। और फिर हमारी टीम जो है वो आपसे कोर्स का रिव्यू लेगी और फीडबैक सेशन होगा। एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू फ्यू बुक्स एंड फ्यू सोर्सेज फॉर कांस्टेंट इंप्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश। और आपके पास जब तक सपोर्ट है व्हाट्सएप ग्रुप में, यू कैन आस्क वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस ना आप एंड पे पूछेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक पे, विच इज सेल्फ इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपका लेक्चर मैंने स्टार्ट किया, अब आपको क्यूरोसिटी होगी हु शी इज। हमें पता होना चाहिए हमें कौन पढ़ा रहा है, उसका नाम क्या है। या हम पहले किसी को जानना चाहते हैं तो हम उसका नाम पूछते हैं, या हम जानना चाहते हैं कि वो बंदा क्या कर रहा है। सो सेल्फ इंट्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट इन सो मैनी सेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, यू जॉइन सम क्लास और यू आर एट सम इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप जाते हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्योंकि उन्होंने उस बंदे को जज करके उसके बाद उसके इससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग के लिए अपना माइंड भी बनाना होता है। सो वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट पे आपसे पूछते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और यू जॉइंड समवेयर न्यू, तो वहां जाके आपको अपने कोलीग्स के साथ खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। देन एट सम सर्टेन न्यू हॉबी, एट सम लार्ज इवेंट, जहां आप स्पीकर हो वहां भी आपको जाके खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी से भी आप मिलते हैं तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। अच्छा, अब हम किसी से बात शुरू करते हैं तो इन पाकिस्तान वी से अस्सलामु अलैकुम, जो कि हमारा एक कन्वर्सेशन स्टार्टर है। लेकिन क्या है बच्चों कि अब अस्सलामु अलैकुम इज ओनली फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। इसका एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट है जिसके बाहर हम इसे यूज नहीं कर सकते। अब हमें नहीं पता हमारे जो अगला पर्सन है वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है या वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। सो वी हैव टू यूज समथिंग न्यूट्रल। सो दीज आर न्यूट्रल्स ग्रीटिंग्स। अब ये वाली सारी जो हैं, जो येलो में हाईलाइट हुई हैं, ये आपके कन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं और ये आपकी फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। द नंबर वन इज हेलो। आप किसी से भी मिलते हैं, यू हैव टू से हेलो। आपने किसी को ईमेल करनी हो तो भी आप, अगर वो आपकी प्रोफेशनल ईमेल नहीं है, इट्स अ सिंपल क्वेरी, यू कैन यूज वर्ड हेलो। और फिर उसके बाद आप यूज करते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपने कब से कब तक यूज करना है, फ्रॉम 5 AM till 12 in noon you have to use good morning। अच्छा, गुड नून जो है वो कोई फ्रेज नहीं है, कोई लफ्ज नहीं है, ठीक है, वो आपने यूज नहीं करना। देन गुड आफ्टरनून, आफ्टर 12 till 4 in winters and till 5 in summer you have to say good afternoon। एंड देन गुड इवनिंग, जब तक आप सो नहीं जाते, 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद सर्दियों में, 5 बजे के बाद गर्मियों में, तो बेटे आपने गुड इवनिंग का लफ्ज ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद गुड डे। ऑस्ट्रेलिया में एक जर्नल ग्रीटिंग यूज होती है ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में। दे आर सर्टेन वेरिएंट्स ऑफ इंग्लिश। जिस तरह हम देखते हैं ना, पंजाबी के डिफरेंट लहजे हैं, सराइकी है, जांगली है और इस तरह पोठोहारी है। दे वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। तो इसी तरह दे आर सर्टेन types of English, Irish English or British English, American English, Australian English, Canadian English। So there are certain types of English as well। So ऑस्ट्रेलिया में इन सारी ग्रीटिंग्स की जगह गुड डे यूज होता है। ओके और उसके बाद हम गुड नाइट क्यों नहीं कहते किसी को रात के टाइम भी? हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि गुड नाइट हमारा कन्वर्सेशन एंडर है या कन्वर्सेशन कटिंग फ्रेज है। इसके बाद गुड नाइट का मतलब होता है भाई सब चीजें एंड हो गई हैं, नाउ आई एम गोइंग। ठीक है, अच्छा, अब तो ये तो हो गई जो सारे हमने एकेडमिक सेटिंग में या प्रोफेशनल सेटिंग में यूज करनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने हाय हे व्हाट्सएप वगैरह यूज क्यों नहीं की। ये आप अपने दोस्तों के साथ यूज कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ यूज कर सकते हो, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज दीज इन योर प्रोफेशनल सेटिंग्स। अच्छा, उसमें है हाय, हे, व्हाट्सएप, हैया। अब ये जो हैया है ये एक स्लैंग, एक इम्प्रेशन है, ठीक है, गली कुचों की जुबान का एक्सप्रेशन है। देन व्हाट्स गुड, व्हाट्स गुड अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, बट वी विल फोकस ऑन
British English. What is the reason behind? As in Pakistani context, we usually use British English, and people are not supposed to understand American, Irish or Canadian English everywhere. So widespread सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली टाइप कौन सी है इंग्लिश की? That is British English. So we will focus on British English. Okay. So ये सारी greetings जो हैं, these are informal greetings. And then your name, आपने अपना नाम बताना हो. What you can say I'm, which is a short form of I am. I am, my name is, my names, this is. अब this is का expression जो है ये use होता है recording के लिए, या आपने किसी से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी हो. आपने देखा होगा इंग्लिश मूवीज में वो फोन उठाते हैं और कहते हैं हे दिस इज जॉनसन. सो ठीक है. अच्छा, अब हमने किसको बताना हो कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारा घर कहाँ है. आप कहेंगे आई एम फ्रॉम फैसलाबाद. अगर आप सिटी की बात कर रहे हो, या आप कंट्री, आप अपने अपने शहर की बात कर रहे हो, आई एम फ्रॉम फैसलाबाद. या अगर आपने अपनी नेशनैलिटी बतानी हो तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, या आई एम पाकिस्तानी. अच्छा, अब आप किसी जगह जाते हैं तो वहां आपने बताना है, एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर मूव करते हो, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हो, तो व्हाट यू विल से, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, आई कम फ्रॉम यूएई. ओके. अब अगर आप एक जगह पैदा हुए हो और लेकिन आपका अपब्रिंगिंग जो है वो एक अदर प्लेस पे हुई है, व्हाट यू विल से, आई एम बोर्न इन पाकिस्तान बट रेज्ड इन यूके. ओके. अगर आप कहते हो कि आपने पास्ट में ही अपने फर्स्ट पार्ट को लेकर जाना है, तो आप कहते हो आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान एंड रेज्ड इन यूके, यूएसए और व्हाटएवर इट इज. अच्छा, अब अगर आप एक जगह पैदा हुए होते हो, आपकी एजुकेशन एक जगह की है, लेकिन आजकल आप कहीं दूसरी जगह पे रह रहे हो, इट कैन बी अ कंट्री, इट कैन बी अ सिटी, व्हाट यू विल से, आई ग्रू अप इन फैसलाबाद बट लिविंग इन लाहौर. ठीक है. आई ग्रू अप इन पाकिस्तान बट लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके. आई हैव बीन लिविंग इन, अगर आपने किसी को बताना हो कि आप किसी जगह पे कितने सालों से रह रहे हैं, व्हाट यू विल से, आई हैव बीन लिविंग इन फैसलाबाद सिंस 6 years, 7 years. आई हैव बीन लिविंग इन Islamabad since this time. I have been living in UAE since this time. और अगर आपने किसी को बताना हो कि आपने अपनी जिंदगी की कुछ हिस्सा कहाँ गुजारा है, तो पिछले साल कहाँ गुजारे, किसी दोस्त से मिले, तो आप उससे कहते हो कि आपने उसे बताना है कि आप पिछले सालों में कहाँ थे. आई हैव स्पेंड past years in Dubai. ठीक है. आई हैव स्पेंड past years in Lahore. I have spent so many years in Dublin. Okay, this is how you can tell about your geographical location. Okay, अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की. आपने अपना एक्सपीरियंस किसी को बताना हो कि आप किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं. आई वर्क एट पेप्सिको. मैं पेप्सी की कंपनी में काम कर रहा हूँ. आई वर्क फॉर, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. फॉर अ पर्सन और फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. आई वर्क फॉर LWE. अच्छा जी. अब आपने अगर किसी को बताना हो कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, दैट कैन बी एजुकेशन, दैट कैन बी फ्रीलांसिंग, और दैट कैन बी वट एवर योर फील्ड इज, जिसमें आप फील्ड में काम कर रहे हो. आप अपनी कंपनी का नाम नहीं बताना चाहते, आप ये नहीं बताना चाहते आप कहाँ काम कर रहे हो, लेकिन आप उसे एक जनरल बात बता रहे हो कि आप कहाँ काम कर रहे हो. ठीक है. आई वर्क इन फील्ड ऑफ एजुकेशन. I work in field of freelancing. I work in field of linguistics. I work in field of mathematics. ठीक है. This is how you can tell someone about your field. This is all for today. I'm not giving any assignments, so you people can take it easy. And after that, when you will be added in WhatsApp group, I'll send all these things, all these notes there. ओके. सो जैसे कि सर ने आपको स्टार्टिंग में बताया, देयर आर सो मेनी वेज दैट यू कैन अर्न वाया कम्युनिकेशन स्किल्स. यू कैन अर्न वेरी गुड. अब आप देखिए जो टीवी के होस्ट हैं, ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रहे, बट दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट. रीजन, द कम्युनिकेशन इज गुड. Okay, so how you can earn via communication? You can work as sales representative,
डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करने के लिए इतनी ज़्यादा सीट्स आती हैं। जब हम लिंक्डइन वगैरह पे देखते हैं तो वहाँ सेल रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट आई होती हैं। सर्टेन कॉल सेंटर्स में आपको जॉब मिल जाती है इजीली इफ़ योर इंग्लिश इज गुड। देन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर आप किसी जगह कॉल करते हैं, फूड पांडा से आपको कॉल आती है कि आपने ऑर्डर की कंप्लेन की है, तो जो बंदा या बंदी आपको कॉल कर रही होती है दैट इज कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। देन मार्केटिंग प्रोफेशनल, लोगों को अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो कि अगले बंदे को इम्प्रेस कर सकें या अगले बंदे को उस नोट पे ला सकें कि वो हमारी प्रोडक्ट खरीद रहा है या वो हमारे साथ कांटेक्ट कर रहा है। उन्हें हम कहते हैं कि वो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, हर कंपनी में कुछ ऐसे लोग रखे होते हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट को समझें और जो पब्लिक के लोग उनसे मिलने आए उनके माइंड सेट के मुताबिक, जो हमने बात की थी, कंसिडरेट करके उन्हें डील कर सकें। ठीक है, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर्स। अब आप किसी कोई एक फॉरेनर पाकिस्तान में आता है जिसे पाकिस्तान की लोकल उर्दू लैंग्वेज नहीं आती, he'll hire someone जिसे उर्दू भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो। whenever you are bilingual, आपको दो जुबानें आती हैं, दो से ज्यादा जुबानें आती हैं। if you are bilingual और you are trilingual, तो आपके पास ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की जॉब करने की भी ऑप्शन है। अगर आप देखो तो दुबई में यूजुअली ये पोस्ट आई होती है कि एक ऐसा बंदा हो जिसे इंग्लिश भी आती हो और इससे साथ उर्दू भी आती हो, ताकि वो वर्कर्स से कम्युनिकेट कर सके। ओके, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव कौन से होते हैं? वे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं और उन्हें लोग भेजते हैं कि आप जाएं हमारी जगह जाके कॉन्ट्रैक्ट कर आए। सो दोज आर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जेक्टिव्स। उसके बाद आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, अपनी वीडियोस बना सकते हैं, अपना व्लॉग बना सकते हैं और आप अच्छा अर्न कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट हर जगह रिक्वायर्ड होता है, इसके हम गिग्स भी बनाएंगे। और इफ यू आर गुड इन सम लैंग्वेज यू कैन गिव वॉइस ओवर टू एनीथिंग। देन Amazon ऑडियो बुक्स। Amazon ऑडियो बुक्स एक अपकमिंग बड़ी इंडस्ट्री है। यू कैन रेकमेंड ऑडियो बुक्स टू पीपल, for people, and you can earn very good. And then spoken instructor, if you are good in English, you can give spoken classes to others as well. So this is all for today. Now you can question. अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ लें। अच्छा, जी बिल्कुल, ये CSS के लिए भी आपका और गवर्नमेंट इंटरव्यूज के लिए भी बेनिफिशियल होगा। रीजन इज दैट इंग्लिश हर जगह इस्तेमाल होती है। We will learn how to speak English in some stylish way. प्रोनाउंसिएशन जब हमारी ठीक हो जाएगी तो हम स्टाइलिश वे में बरीरा इंग्लिश बोलना सीख लेंगे। आयशा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नहीं मिलेगा। जिन लोगों को आपने ग्रुप में ऐड किया है उनके व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें, वो आपको कोर्स में ऐड करेंगे। समरा, हम चेंज कर सकते हैं अपना एक्सेंट बाय अ लिटिल प्रैक्टिस, जो रोज की प्रैक्टिस हमने रखी हुई है। मोहम्मद, कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है इस कोर्स के लिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश तो आपको अच्छे तरीके से इंग्लिश सिखाई जाएगी। आप जिस भी क्लास में हो, आप जिस भी ग्रेड में हो, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख लोगे, क्योंकि हम एक एक चीज तो पढ़ रहे हैं। हम दिस दैट इज एम आर का यूज भी तो पढ़ रहे हैं अंदर, जो हमने सारी अपनी कोर्स आउटलाइन देखी है। थैंक यू किरण, थैंक यू सो मच for your kind words to us. Kiran saying that she took almost 4 sessions today and all are amazing. All teachers are kind-hearted and cooperative. Thank Jazakillah for making me a part of your institute. God bless you all. Barik fikum. Kiran, thank you so much. Okay. Yeah, pronunciation is all about accent. Accent बच्चों एक बड़ा मिथ है। आपको कहा जाता है आप अपना एक्सेंट ठीक कर लें, ये नहीं बताया जाता एक्सेंट कैसे ठीक करना है। एक्सेंट वे ऑफ स्पीकिंग है। हम पाकिस्तानी हैं, हमने कुछ लफ्ज एक तरह ही बोलने हैं। सो those you can say those ways can't be changed. वो वेज चेंज नहीं हो सकती। हाँ, किस वर्ड को किस तरह से यूज करना है उसकी
आप कह लो कि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसका साउंड क्या है। जिस तरह हम देखते हैं बी के साउंड्स हम देख लेते हैं, बी, ब्लेसिंग, बी के दो डिफरेंट साउंड्स